India Today's independent sting operation exposed Mahadev betting application, and that has now led to an impact. Ministry of Electronics and Information Technology has blocked 22 illegal betting applications and websites, including Mahadev application, which is facing money laundering charges in Chhattisgarh. Centre's action comes after our investigation and also, of course, after the ED probe into the matter. ID Minister has also appreciated the India Today investigation for increasing more awareness. Ministry of Electronics and IT, in a sharp attack at the Baghel government, said it had all the power to shut the application, but it did not do so, even at the request of shutting applications that came from the ED. And that came from the ED and not the government. इंडिया टुडे आज तक के सिस्टम ऑपरेशन को आप कैसे देखते हैं? तो देखिए, ये अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बने और जो हमारे एक तरह से पॉलिटिकल क्लास हैं, भूपेंद्र बघेल जी जैसे लोग हैं जो इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ मिलकर हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को भड़काना चाहते हैं, उनको मिसलीड करना चाहते हैं और एक तरह से गैम्बलिंग और बेटिंग में एडिक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, उसको हम सब मिलकर, मीडिया और सरकार मिलकर उनके साथ एक प्रयास के साथ उनको डिटर करने के लिए, उनको ब्लॉक करने के लिए हम काम करें। आपका अवेयरनेस, आपके प्रोग्राम से एक अवेयरनेस भी बढ़ेगा कि कैसे ये क्रिमिनल लोग हमारे देश में एक क्रिमिनलिटी फैला रहे हैं और उनके कैसे पॉलिटिकल सपोर्टर्स भी हैं और कैसे हमको मिलकर इसको सामना करना पड़ेगा और उससे डटकर फाइट करना पड़ेगा। But this Mahadev application controversy has fully exploded, specifically ahead of Chhattisgarh elections. An alleged founder of the mastermind of this betting application scam, his name is Shubham Soni. Now, it is him leveling some of these serious allegations against the Chief Minister directly. He's put out a video and claimed that he gave 508 crore rupees to Chief Minister Bhupesh Baghel, his son and their associates for this application to continue to run. That even it was suggested for him to go to Dubai to expand his business. The claim has been vehemently opposed by the Chhattisgarh Chief Minister himself. He's called the accused confession tutored, and that he's claiming that the BJP and the Enforcement Directorate are saving Shubham Soni from all the heat. IT Minister, however, has upped the ante, asserting that Bhupesh Baghel gets election funding from criminals and has attacked even the Congress party for allegedly taking money from these illegal betting applications ahead of polls. Remember, the Enforcement Directorate has claimed that it had recorded a statement of a cash courier who had alleged that Chhattisgarh Chief Minister's office received 508 crore rupees from the Mahadev betting app, the promoters who were based in the UAE. जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। तो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ। जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। हमने 3-4 हजार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराया है। 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे, आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है। इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। वीडियो आपने देखा होगा, कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इतना तेजी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट
बैक टू बेटिंग। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज के दिन में जो बेटिंग एप्स हैं, बेटिंग एजेंसियां हैं, वो इलीगल हैं और उसके बैक पीछे क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं। तो एक तो इलेक्शन के लिए पैसा लेना, दूसरा इलेक्शन के लिए क्रिमिनल एलिमेंट से पैसा लेना, वो भूपेंद्र बघेल जी ने कल दिखा दिया है। ईडी उस पे ऐप पे बात कर रही है और ऐप में जो चीजें मिली हैं वो चीज का खुलासा करने का काम कर रही है। अब बघेल जी अगर इसमें लगता है कि उनकी इमेज को खराब करने के लिए, ये तो इमेज ऑलरेडी खराब हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसी का तो पर्दाफाश हो रहा है और जनता इस बीच को इस बातों को जानती नहीं थी। जनता के सामने इसका खुलासा हो रहा है, जनता इस पर उनके खिलाफ निर्णय लेने का काम करेगी। मोदी जी की सरकार बनने के बाद में पीएमएलए में जितने केसेस रजिस्टर किए हैं और जिन केसेस को रजिस्टर किया है उसमें 96.54% कन्विक्शन रेट है। दुनिया की किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ये कन्विक्शन की रेट, जिसमें सजा हुई और चार्जशीट हुआ, ऐसी कोई भी रेट आप मुझे बता सकते हैं? कोई अनपैरेलल है। इसलिए जो भ्रष्ट लोग हैं वो अपने भ्रष्टाचार के पकड़े जाने पर इस तरह के अनर्गल जो है प्रलाप भी करते हैं और अनर्गल आरोप भी लगाते हैं। ये सब पूरी तरीके से भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा जहां चुनाव हो रहा है, राजस्थान में भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी छापे पड़ रहे हैं, अन्य जगह भी छापे पड़ रहे हैं, तो चुनाव में उनको ईडी याद आती है और छापा याद आता है, महादेव ऐप आता है। उसके पहले क्यों नहीं किया? अगर जानकारी थी तो चुनाव के पहले करना चाहिए था। तो चुनाव के केवल दृष्टिकोण से चुनाव में फायदा लेने के लिए वो ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। This, remember, is as much about the illegal betting scam, but it's also political. Ahead of Chhattisgarh election, Prime Minister Modi, who's also BJP star campaigner, took pot shots at Bhupesh Baghel amid this escalating controversy. Listen in. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं।